Hi, a very good afternoon to all of you. So, with the thumbnail itself, all of you know कि this is regarding an opportunity at 16 Finance Commission. ठीक है, काफी सारे students हैं, they ask for different opportunities. They keep on asking कि हाँ कहाँ पर अभी कोई opportunity है, चाहे वो bachelor's level पे हो, चाहे masters पे हो या post PhD and so on. ठीक है. So when we got to know about this, so we thought कि we should ensure कि all the aspirants of different exams coming from economics background, they should be aware about this. ठीक है कि उन सबको पता होना चाहिए कि ऐसी एक ओपनिंग है, ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है टू वर्क इन द 16th फाइनेंस कमीशन. ठीक है, अगर आप ऑफिस मेमो देखोगे, सो दिस ऑफिस मेमो इज डेटेड 15th of April. ठीक है, सो व्हेन दिस वाज इशूड, राइट नाउ. अब बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी है फॉर इंटर्नशिप एट 16 फाइनेंस कमीशन, राइट. तो ओवरऑल आपको ऑर्गेनाइजेशन पता है, डिपार्टमेंट पता है जहां पे आपको एग्जैक्टली काम करना होगा, जिसके परव्यू में आपको काम करना होगा. और जो रोल रहेगा दैट वोंट बी अ परमानेंट रोल, like you won't be a government of India employee. It's an internship role. ठीक है, kindly consider that as well, right? It's an internship opportunity, but it is something जो किसी भी बच्चे को skip नहीं करनी चाहिए. Because not many often you get such opportunities, and that too to work under the purview of 16 Finance Commission. That's amazing. ठीक है, काफी सारे बच्चे go for, even the students जो corporate में जाना चाहते हैं, those students also want to work and have some experience in the government sector. No other better opportunity than this. ठीक है, so प्लीज कंसिडर दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक श्योर आप इसको फिल करें, इस एप्लीकेशन फॉर्म. ठीक है, सो लेट्स सी द मेन डिटेल्स अबाउट द इंटर्नशिप. और अगर आप यहाँ पे जो फर्स्ट पैरा है उस पर ध्यान दोगे, इट सेज SFC, which is the 16th Finance Commission, has been constituted by the Government of India on 31st of December 2023. ठीक है, accordingly applications are invited from eligible candidates. First, eligibility होनी चाहिए for their engagement as interns. तो यहाँ पे दो चीजें हैं, पहला eligibility, दूसरा जो आपको कैटेगरी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, आपको बोला क्या जाएगा, या कंसल्टेंट या यंग प्रोफेशनल या इंटर्न्स. तो इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में आपको बोला जाएगा इंटर्न्स. ठीक है, एंड इन द कमीशन एज पर द गाइडलाइंस ऑफ एनेक्चर 1 रिस्पेक्टिव. ठीक है. So, second point, very important. It is an open-ended circular. Therefore, this process will continue till all interns are engaged. So basically, me as SFC, अगर मेरे को जितने भी interns चाहिए, जब तक वो पूरे नहीं हो जाएंगे, so it's a open-ended circular. तब तक ये process continue रहेगा. तो as such कोई deadline नहीं बोली गई है. अगर मैं let's suppose 20th तक मेरे सारे जो interns मुझे चाहिए with the eligibility, with the work experience, या जो भी requirement है, वो मेरी अगर 20th तक complete हो जाएगी तो I'll just wrap it up as soon as possible. But अगर वो मई तक भी नहीं होती है, so it will continue. The circular will remain open. The office memo will remain open for the internship opportunity. ठीक है, that is very important. Okay, ये भी ध्यान रखना कि any amendment correndum related to this particular shall be uploaded on the website of the commission itself. तो अगर कोई भी changes होते हैं, कुछ addition आती है, या क्या पता कोई date आ जाए एकदम से लास्ट डेट, तो वो जो भी चीजें होंगी, या फाइनलाइजेशन हो जाए या क्लोजर हो जाए, जो भी होगा वो सब आपके कमीशन के वेबसाइट पे अवेलेबल होगा ऑफ द फाइनेंस कमीशन. ठीक है, सो अगर आप हेडर देखोगे यहाँ पे, सो इट्स फाइनेंस कमीशन इंडिया nic.in. ठीक है, डायरेक्टर सर का इस पे साइन है, राइट. So this is it. Now annexure 1, जिसकी वहां पहले और दूसरे पॉइंट पैराग्राफ में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, so this is the annexure 1 जो कि नीचे अटैच्ड है. That's very important, और आपको इसको very clearly पढ़ना पड़ेगा to make sure आप सही जगह अप्लाई कर रहे हो. ठीक है, प्रोसेस आपको पता है और क्या एलिजिबिलिटी है, वो सारी चीजें क्या अटैच करना है ना. ठीक है, ऑब्जेक्टिव, तो पर्पस क्या है इस पूरे इंटर्नशिप का, टू फैमिलराइज द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विद द प्रोसेस devolution of finances between the union and the state in India, as well as among the states. Also to provide an opportunity to carry out brief research into a specific terms of reference
of the 16th Finance Commission or the key specific economic issues, problems, and offer solution for the same. So basically, mota nutshell mein they have tried to show you or highlight the operation of the objective of this entire thing. Correct? So what it will involve indirectly would be at the stage of interns would be some research work. Okay? There might be some presentations as well, which might be required. Yeah, background work of the presentation. So these kind of things. बाकी जब orientation होता है, in depth they tell you at that point of time. ठीक है, so this is overall work. अगर आप notice करोगे तो यहाँ पे you will find that the work is pertaining towards both the union and the state. ठीक है, उनके context में सारा काम रहेगा. जो भी डेटा आपके पास रहेगा, ठीक है, जिस पे भी आपको काम करना होगा, that would be pertaining to that, of course, related to the finance. ठीक है. Then the eligibility. सबसे पहला चीज कि क्या मैं उसके लिए eligible हूं कि नहीं. Eligibility. Of course, outstanding candidates, just see outstanding candidates pursuing graduation. ठीक है. Final year. ठीक है, make sure आप final year में हो. Post graduation, PhD in economics, finance, similar subjects from leading accredited universities institution can apply. ठीक है. अब देखो यूनिवर्सिटी का कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है. आपने कहीं से भी किया हो, दैट्स फाइन. ठीक है, एज लॉन्ग एज यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है. फाइनल ईयर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है. पहला. सेकंड, ऑफ कोर्स योर पोस्ट ग्रेजुएशन. ठीक है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हो या पीएचडी की हो. अब यहाँ पे दो टर्म्स दिए हुए हैं, ऑफ कोर्स थर्ड टर्म एज वेल. पहला इकोनॉमिक्स, दूसरा फाइनेंस, और द थर्ड वन इज सिमिलर सब्जेक्ट. ठीक है, सो अगर मोटा मोटा आपको बोलूं तो आइडियली दे विल ईदर प्रेफर इकोनॉमिस्ट और द फाइनेंस का है. ठीक है, फाइनेंस इसलिए बिकॉज फाइनेंस कमीशन के अंडर इंटर्नशिप है, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि जो इंटर्न्स होंगे दे माइट बी फ्रॉम फाइनेंस डोमेन. ठीक है, और ऑफ कोर्स बट ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर विल बी इक्वल वेटेज टू स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम इको बैकग्राउंड, right? Because the research work, the modeling and everything that can be easily done by a student coming from economics background. ठीक है? So basically pretty open for both economics and finance students from graduation, post-graduation, and of course pursuing PhD, right? तो आप eligible हो clearly, right? अब अटैचमेंट पे आ जाते हैं. द इंटर्न्स वुड बी अटैच्ड विद द चेयरमैन स्लैश मेंबर, सेक्रेटरी और एनी अदर फंक्शनरी ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन. ठीक है, आप उनके अंडर, उनके परव्यू में काम करोगे. ये सारे जो आपके सीनियर्स होंगे उनमें से कोई भी आपको असाइन किया जाएगा फ्रॉम द 16th फाइनेंस कमीशन. Okay, submission of paper. The intern shall also undertake to present an original paper as his study during the internship on any research topic. ठीक है, so इसकी दो चीजें आप ले सकते हो. एक कि it's a work which you will have to do it. ठीक है, दूसरा you get an opportunity which I favor the second point कि आपको एक opportunity मिलेगी to kind of write a paper, original paper of your own under the purview of 16th Finance Commission, मतलब under the guidance of them. ठीक है, on any research topic they are saying. ठीक है, so in terms of exposure बहुत बड़ी बात है that they are allowing you, they are asking you to submit a paper, original paper from your end, and that too giving you any topic to write on. ठीक है, so this is very important. Research topic and inductive list of research topic is in the annexure 2. Candidates are required to mention 2 to 3 research topics in their application. ठीक है, ये चीजें आपके जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म है वहां पे कुछ चीजें हैं जो मैंडेटरली आपको भरनी है. सो वो आप फिल करोगे. सो अगर आप यहाँ पे देखो, दे विश टू स्टडी ड्यूरिंग द इंटर्नशिप. नाउ रिसर्च टॉपिक इन दर एप्लीकेशन इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस. ठीक है, रैंडम मत करना, प्रेफरेंस के बेसिस पे करना. 2 से 3 रिसर्च टॉपिक्स टाइप करना, लिखना प्रेफरेंस में as they wish to study during the internship. For each of the research topic, candidate have to provide separately the following. 3 चीजें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी कि बस मैं रैंडमली नहीं लेकर आया अपना रिसर्च टॉपिक. उसके पीछे जो विजन है, जो मोटिवेशन है, विजन और मोटिवेशन स्टेटमेंट फॉर द सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, वो आपको लिखनी होगी. प्रपोज्ड आउटलाइन लिखना होगा. प्रपोज्ड टाइमलाइन, अब भाई मैं 6 महीने तो नहीं ले सकता उसके लिए. ठीक है, सो द प्रपोज्ड टाइमलाइन फॉर द प्रोजेक्ट फ्रॉम 0 day, okay,
till the preparation of the interim / submission of final report. तो ये नहीं है कि इट्स जस्ट अनदर इंटर्नशिप जहाँ पे हम जाएंगे, बैठेंगे, आ जाएंगे, एंड देन एट द एंड ऑफ द लेट्स से 1 2 3 6 मंथ जितने की भी ड्यूरेशन रहेगी, उसके बाद हमें एक अच्छा खासा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू 16th फाइनेंस कमीशन के थ्रू एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा दैट विल हाईलाइट ऑन द लिंक्डइन शेयर विद आवर फैमिली फ्रेंड्स. That's not the case. Over here, they are trying to teach you. They are trying to help you. They are trying to make sure कि आप grow करो by actually offering you an opportunity to write a paper. ठीक है, to work on a paper. ठीक है, and ये और भी ज़्यादा significant हो जाएगी if someone coming from a graduation final year. ठीक है, बिकॉज उन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया, तो इससे ज्यादा एक्सपोजर कहीं नहीं मिल सकता. वेयर इज अ पीएचडी गाय, ठीक है, जो पीएचडी कर रहे हैं, अगर वो यहाँ जाते हैं तो दैट इज अगेन दैट विल एड वैल्यू टू दिस सीवी कि हाँ एट दिस लेवल आई एम राइटिंग अ पेपर. बट माइंड यू द एक्सपेक्टेशन from a student or a candidate coming from a final year graduation is completely different or against someone who is pursuing PhD. So that's very important. So that should reflect in your motivation or vision statement as well. ठीक है? So that is very important. ये नहीं कि हर एक के लिए जो ये pointers हैं that would remain the same. A graduation or a post-graduation or a PhD, all these three levels will have a different versions of their research work. ठीक है? Okay, very simple application process. The candidates for being appointed as the interns, again quoted as interns in the commission, may forward their application in the duly performer in the annexure 3. तो आपका जो application form है वो annexure 3 है, जो कि नीचे आपको भी मिलेगा. Along with supporting documents, of course, कोई भी application form without supporting documents is null and void, right? और सारे supporting documents आपके एक single PDF में होंगे. So PDF जाके merge करो, that's it, right? Only by an email addressed to the director, 16th Finance Commission at manish.kr1975@nic.in, with a copy of rahul.sharma89@nic.in expressing the interest. ठीक है, तो आप मेल किसको करोगे? ठीक है, email will be addressed to the director. ठीक है, at this with a copy CC आप कर सकते हो, करना होगा to rahul.sharma इस मेल आईडी पे आपको करना होगा. ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करोगे सिंगल पीडीएफ में रहेगी. ठीक है, नो मल्टीपल पीडीएफ, सबको मर्ज कर लो पीडीएफ जाके पीडीएफ मर्जर पे, राइट? ओके, एंड हाँ, तो इट हैज टू बी कंप्लीटली ऑनलाइन. तो अगर आप नोटिस करोगे, बट ऑब्वियस कि ये मेल आईडीज दिए हुए हैं आपको. ठीक है, सो द एंटायर प्रोसेस वुड बी डन ऑनलाइन वाया मेल एट द वेरी फर्स्ट स्टेज. कुछ भी फिजिकल कॉपी वोंट बी सेंड. ये नहीं कि आप फाइनेंस कमीशन का ऑफिस ढूंढो और वहां उन्हें कोरियर कर दो, पोस्ट कर दो. नहीं, ये और भी इजी है, और भी कन्वीनियंट है. अपना जीमेल उठाओ, टाटा एप्लीकेशन अपलोड करो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो. 2 में सर को रखना है, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस कमीशन, एंड देयर इज अनदर सर जिनको आपको सीसी में रखना है, एंड अपलोड द डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, अब नाउ द नेम ऑफ द पीडीएफ फाइल विल बी कैंडिडेट्स नेम. ठीक है, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, जब भी सरकारी काम करो तो जो जो उन्होंने चीजें बोली हैं उसको मतलब समझो, इट हैज टू बी डन एग्जैक्ट मैनर में. कुछ भी ऊपर नीचे मत करना गलती से भी. और प्लीज कोई अपने उसमें कैंडिडेट्स नेम ही मत लिख के आना, अपना नाम वहां पे लिखना. उस पीडीएफ का जो रीनेम करने के बाद आप करोगे, दैट शुड बी योर नेम इटसेल्फ. ठीक है, जो भी हम पीडीएफ मर्ज करके बनाएंगे, प्लीज वो आपका नाम से वो पीडीएफ का नाम चाहिए. ठीक है, उससे उनको इजी और कन्वीनियंट रहता है. एंड द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल विल बी एज अंडर. तो अगेन जैसा उन्होंने बोला हुआ है उसी पैटर्न में ही आपको रखना है. ठीक है, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट होता है जब हम मेल लिखते हैं, राइट, व्हेन यू आर राइटिंग एनी मेल, उसमें सब्जेक्ट होता है, करेक्ट? आपके एप्लीकेशन में भी होता है, जब आप स्कूल में लिखते हो, कहीं भी. मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ सब्जेक्ट इसलिए बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनके पास हजारों मेल आ सकते हैं. दे डोंट नो कि किस कंटेक्स्ट में आया. तो अगर आपका मेल स्किप हो गया तो ये मत बोलना
कि उन्होंने गलती कर दी, हमने तो भेजा था, कल को आप उनके पास पहुंचो, ऐसा कुछ नहीं करना। उन्होंने बकायदा बोला है कि आपका जो सब्जेक्ट होगा दैट विल बी नेम्ड एप्लीकेशन फॉर इंटर्नशिप इन आरओ करके एग्जैक्ट लिखो, इसको एग्जैक्ट कॉपी करके फिर अपना नाम लिख देना, दैट्स इट। और हाँ, ये जो दो साइड में कॉमास लगाए हैं वो नहीं लगाने हमें, ना ही कैंडिडेट्स नेम में, ना ही सब्जेक्ट में, ठीक है। तो दो कॉमास वो नहीं, कैटेगरिकली नहीं लगाना हमें। एप्लीकेशन फॉर इंटर्नशिप इन आरओ फिर अपना नाम लिख देना, दैट इज इट। उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। और जो पीडीएफ आप अपलोड करोगे, अटैच करोगे, वो आपके नाम से जाएगी, खत्म बात। ना सिलेक्शन Indian filled application in the prescribed format received will be considered by the Finance Commission for the selection. Commission will be final. Simple, जो भी होगा final decision होगा, that will be resolved by the commission, और जो भी वो final करेंगे, that has to be the final decision. Correct? Their internship request can be refused without denying any reason. Of course, ये नहीं है कि अगर आपको select नहीं किया तो they are obliged or they have to reply you, right? ऐसा कुछ नहीं होता. There is no need for them to reply you back. या ये बताने का कि मुझे क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। और प्लीज अगेन हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट कॉल देम कि मैंने एप्लीकेशन भेजी थी, आपने रिप्लाई नहीं किया, क्या हुआ, कहाँ प्रोसेस भेजा। जो होगा they will do it very transparently. I am telling you, I have seen this, I have worked internally. मुझे पता है कि जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी निकलती है तो हम उन लोगों को कैसे एड्रेस करते हैं। सारी चीजें बहुत ट्रांसपेरेंटली होती हैं, ठीक है। सबकी बकायदा लिस्ट लिखी जाती है, सबके मार्क्स लिखे जाते हैं, जो जो ऑप्शंस होते हैं एप्लीकेशन में सबको लिखा जाता है, और प्रॉपर फिल्टरिंग होती है, कोई भी अननेसेसरी किसी को नहीं रिजेक्ट करता, ठीक है। सो डोंट डिस्टर्ब देम बाय एवरी डे कॉलिंग एंड आस्किंग फॉर एन अपडेट, ठीक है। हाँ, आप ये कर सकते हो, एक फॉर्मल मेल, लेट्स से आफ्टर अ मंथ, आपने महीना हो गया, आपने फिल कर दिया, जस्ट रिस्पेक्टफुली आप उनको एक मेल ड्रॉप कर सकते हो कि आई हैड अप्लाइड फॉर दिस, there was no response and even I can't see the final list. So you can do that very respectfully, but उससे पहले चेक कर लेना कि फाइनल लिस्ट आ गई है कि नहीं आ गई, और you just might straight away drop a mail, ठीक है, right? Given preferences, ये क्या है, हाँ, eligible candidates whose proposals and the competencies for the research study suit significantly with the will be given, of course. तो आप इस तरीके से इसको आप ये भी ले सकते हो कि यार 16th फाइनेंस कमीशन है, तो कुछ एक फाइनेंस का टॉपिक सॉलिड से ढूंढते हैं, वो डालेंगे तो हमें इंटर्नशिप मिल जाएगी, ठीक है। फाइनेंस इज वेरी वाइड एंड यू डोंट नो एग्जैक्टली क्या चीज है, क्या टॉपिक है दैट माइट जस्ट स्ट्राइक देम टू एक्सेप्ट योर प्रपोजल, ठीक है। तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, पहली बात। दे आर जस्ट सेइंग कि द विजन ऑफ योर्स शुड बी अलाइनिंग विद देयर विजन एज वेल, ठीक है। आपकी रिसर्च वर्क जो हो, दैट शुड एड वैल्यू, दैट शुड वर्क विद देयर वर्क एज वेल, ठीक है। दैट इज इट। सो देयर इज नो सिग्निफिकेंट preference as such. It's just कि they want you to do a work in the direction which they look at, right? However, the commission will finally decide the topic of research for the interns. Okay, that's very important. However, the commission will finally decide the topic of the research for interns, which can be other than those suggested by the candidates. Of course, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन ऑफ द कमीशन, ठीक है। आपने टॉपिक्स दिए, 100 बच्चे बैठते हैं, सबने दो दो टॉपिक्स भी दिए, 200 टॉपिक उनके पास है, राइट। नाउ दे कैन डिसाइड कि बॉस इन 200 टॉपिक में से हमें अच्छे लगते हैं ये 2 या 3 4, तो आप जो भी 6 इंटर्न्स हो, आप सब इसी पे काम करो, दैट्स इट। सो द फाइनल डिसीजन ऑफ सिलेक्शन, फाइनल डिसीजन ऑफ द टॉपिक एज वेल विल रेस्ट विद द कमीशन इटसेल्फ, ठीक है। नाउ अब बस मेरे को जॉब मिल गया, इंटर्नशिप मिल गई, जो भी आप कहना चाहो उसको, ठीक है। अब वो होगी कितने टाइम की? सो द कैंडिडेट मे अप्लाई फॉर इंटर्नशिप फ्रॉम 6 weeks to 6 months, ठीक है। सो दे हैव केप्ट अ ड्यूरेशन जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, विच इज फ्रॉम 6 weeks to 6 months. However, the duration in each case shall be finally decided by the Finance Commission. और ये हर जगह होता है. The final decision will rest with the authorizing institution, in this case Finance Commission. Since the time duration is very short, internship would be required to carry out very intense study to ensure desirable outputs in the allotted time frame. But obvious, यार research जैसा काम, it's not laddu.
that you do it within 6 weeks or 12 weeks, or मैं तो कहूँगा even 6 months में it's not possible. I have worked on research papers, multiple research papers for almost year and a half with institutions like IIT Delhi, Terry, some of the professors from there, okay, some of the renowned institutes. So I know how much it takes. So what they're trying to convey here is कि it won't be easy. So you will have to work rigorously. ठीक है? ये उन internships की तरह नहीं है जो हमारे एग्जाम हो जाते हैं, हमारी somehow किसी ने रेफरेंस से internship लगा दी है, we'll go to Gurgaon, we'll go to Noida, sit in the office, जाते कॉफी लेंगे, बैठेंगे, इधर उधर गेड़ी वेड़ी मारेंगे, 2-3 बातें करेंगे, किसी ने प्रिंट आउट बोल दिया तो प्रिंट आउट निकाल दिया, किसी ने बोल दिया ये डॉक्यूमेंट्स इधर दे दो, ये मेल कर दो. It's not going to be that easy. ठीक है? So this internship will add value. This is very meaningful. This is something that will bring experience to your CV and to your life as well, right? So there is no scope of leniency. ठीक है? आप leniency नहीं afford कर सकते during this internship. देखो, माहौल अंदर जाके क्या होगा and depends from department to department. But at the face of the notification, everything would be very serious and you would be required to work very extensively. ठीक है? They will make sure कि they get something productive. They also get something productive in terms of research work from you guys, and you also get something productive, knowledgeable, experience-wise from the entire experience. ठीक है? अब बॉस कितने इंटर्न्स हैं जो ये लोग हायर करने वाले हैं, राइट? दैट्स इंपॉर्टेंट कि भाई वैकेंसीज कितनी है, सीट्स कितनी है, राइट? तो इनके केस में द नंबर ऑफ इंटर्न्स विल बी लिमिटेड टू मैक्सिमम 6 इंटर्न्स पेड इंटर्न्स रहेंगे एंड 4 विल बी अनपेड इंटर्न्स सेलेक्टेड ऑन द मेरिट्स. अब हम वो इंटर्न हैं कि जो फी के लिए, पैसे के लिए, रेम्यूनरेशन के लिए जा रहे हैं, या हम वो इंटर्न हैं who are going there for experience. ठीक है? Choice is yours, right? Maybe you might work at a MNC for 6 months. ठीक है? Experience value might be almost to zero, honestly speaking. ठीक है? And I know that because I have worked MNC में भी, I know the work culture. I have worked in government sector as well, so I know the experience वहाँ पे भी. ठीक है? तो that is one category जहाँ पे शायद वो आपको 5-10 हज़ार कुछ दे देंगे. But at the end of the day, काम क्या होगा, वैल्यू कितनी ऐड होगी, that is almost to nothing. ठीक है? यहाँ के केस में the tag itself, 16th Finance Commission, Government of India, it speaks volume. आपको फ्यूचर में बाहर जाना है, PhD करनी है, UPSC के लिए प्रिपेयर करना है, 100 चीजें होती हैं, 100 रेफरेंसेस होते हैं, और आपको UN में जाना है, ठीक है, 100 चीजें हो सकती हैं, वहां पे इट विल ऐड वैल्यू. ठीक है? तो चॉइस इज योर्स कंप्लीटली. ठीक है? हर टाइप का बच्चा होता है एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड कि will it work if I'm being paid, if I'm not being paid, what exactly is there to learn, and so on. ठीक है? So I'll leave it to you. Candidates can apply only for one of these options. Candidates applying for both may not be considered for any of the option. ठीक है? आप इन दोनों में से एक ही ऑप्शन के लिए चूज कर सकते हो. अगर आप ओवर स्मार्ट बने और आपने दोनों के लिए अप्लाई कर दिया तो आप किसी के लिए भी कंसिडर नहीं किए जाओगे. ठीक है? अब आई कैन स्पीक ऑन दिस एज वेल कि is it more favorable for me if I select an unpaid intern वाले ऑप्शन में मैं कर दूं, तो क्या पता सरकार मुझे सेलेक्ट कर ही ले, क्योंकि अनपेड के लिए तो बहुत कम बच्चे होंगे, है ना? तो ऐसा भी कुछ नहीं है, दोनों ही कैटेगरी ऑफ ऑप्शंस के लिए काफी बच्चे होंगे एंड देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट द डिसीजन शुड बी, द ओनस इज ऑन यू, द डिसीजन शुड बी योर्स, राइट? टोकन रेम्यूनरेशन. ठीक है? अब बॉस जो अनपेड हैं उनको तो नहीं मिल रहा, जो पेड वन है उनको मिल रहा है, पर अब उनको कितना मिल रहा है. ठीक है? सो द टोकन रेम्यूनरेशन इज स्टैंड्स एट 10,000 per month per intern for graduate. ठीक है?
ऑफ कोर्स फाइनल ईयर और द पीजी स्टूडेंट। तो अगर आप पीजी स्टूडेंट हो या फाइनल ईयर ग्रेजुएट हो तो आपको 10,000 पर मंथ मिलेगा सरकार से, ठीक है। वहीं अगर आप एक पीएचडी स्टूडेंट हो तो आपको मिलेंगे 20,000 पर मंथ, ठीक है। इस पेबल ऑन satisfactory completion of their internship and on submission of their report, paperwork, feedback, and so on. ठीक है. So this is about the number of interns and the token remuneration. ठीक है. काफी important point है जब भी कोई join करता है, but ideally there are many other factors which needs to be considered. ठीक है. Now coming to the हाँ, important part जो token remuneration में है, which says no other facility such as DA, perks, allowance, TA, DA, convenience, medical facility would be admissible. अब आप घर पे जाके बोलो, अपने दोस्तों को बोलो, मैं भारत सरकार में काम कर रहा हूँ, लगाओ मेरी गाड़ी के पीछे, स्कूटी के पीछे भारत सरकार का स्टिकर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना, बिकॉज यू आर नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नो वे, ठीक है। तभी आपको ना ही डीए मिल रहा है, ना कोई अलाउंस मिल रहा है, ना कोई अकोमोडेशन मिल रहा है, ठीक है। सो मेक श्योर एज मेंशन्ड यू आर इंटर्न्स एज पर देयर annexure as per their guidelines. So never ever think कि आप बोलो कि मुझे डीए मिलेगा, मुझे पर्क्स मिलेंगे एंड सो ऑन। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू आर एन इंटर्न वर्किंग एट द 16th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। सो नेवर एवर ट्राई टू काइंड ऑफ मिसयूज द नेम कि आप यहाँ काम कर रहे हो। नेवर एवर डू दैट बिकॉज देयर कैन बी लीगल रिपरकशंस ऑन यू, ठीक है। नाउ presentation. Interns may have to take a weekly or fortnightly presentation before his or her assigned officer. जो भी जिसके अंडर भी आप काम करोगे उनको आपको presentation भी देनी हो सकती है as and when you guys decide, you and your senior accordingly. At the end, interns may be required to present a use case or case study along with the final study report. ठीक है. Okay, any sources or reports representation must be duly disclosed. ठीक है, आप जो भी references लोगे आपको लिखने होंगे and due credits will be given wherever required. तो जिनको उनको जहां पे भी लगेगा they will give you required credit. ठीक है, for the work you have done. Right? Confidentiality and secrecy. देखो, even for young professionals, for consultants, and for interns working at any of the ministries or departments of government of India, okay, secrecy is very important. Confidentiality is very important. You can't violate that in any case scenario. ना ही आप कोई इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो, ना मिस यूज कर सकते हो, ना कोई डेटा ले सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो. So mind you, never ever try to indulge in any such activity. During the period of assignment with the commission, the intern would be subject to the provisions of the Indian Official Secret Act 1923. Usman and will not divulge any information gathered by them during the period for the assignment to anyone who is not authorized to know the same at any stage. Ensure information gathered is not uploaded or shared on any platform. ठीक है? So please ज़्यादा हम over smart ना बने. कोई भी information बाहर नहीं जानी चाहिए. The moment ऐसा कुछ भी होता है, then you will have to face a legal action against you. Because आजकल there is the social media platform and so on. Please गलती से भी ये नहीं कि आप एक सेल्फी ले रहे हो, पीछे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपकी सेल्फी में शेयर हो रही है. So don't do that. ठीक है, AI tool, stage and public domain, any violation this shall be taken very seriously and they are serious about that. ठीक है. Integrity certificates are interns are required to sign a non-disclosure undertaking. Of course, NDA usually आप कहते हो non-disclosure agreement. In this case, it's called non-disclosure undertaking, and to provide an integrity certificate from 2 references before commencing the internship. तो अब हर जगह होता है that references are required at times. ठीक है. So over here also you will have to provide 2 references before commencing the internship. That is before commencing. So once you're selected, then you can just go and try to arrange 2 of your references that might just help. Okay. Certification shall be entered on the satisfactory completion of their internship of not less than 6 weeks on submission and on submission of their report and attendance certificate duly certified by the commission designated officer. Okay. They take attendance very seriously, please. Okay. The work, of course, your behavior, ठीक है, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी.
एंड अगेन मैं कहूंगा ऑफ कोर्स डिफर्स स्लाइटली फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, दैट इज समथिंग यू कैन डिस्कस। क्या पता जहां आप काम करने जा रहे हो, जब के सीनियर्स हो, दे माइट बी वेरी चिल, दे बी वेरी रिलैक्स, तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लेवरेज, बट नेवर एवर ट्राई टू kind of miss your days, like you're late for the job or your work. Don't be late, be on time, and do your work which is being assigned to you. Okay. Conditions for of internship, very important. The internship is neither a job, like I mentioned earlier, nor any such assurance. ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप उसको ना समझे कि वो जॉब है, assurance है. Therefore, in the 16th information, the interns are expected to maintain decorum and adhere to the office culture, office working culture. Interns are expected to maintain integrity, discipline. At all time, interns are expected to approach this opportunity honestly and adhere to the guidelines of diligent. The intern can be relieved prematurely on the grounds of unsatisfactory work or violation of any guideline without assigning any reason. अब ठीक है, आप रेगुलर नहीं हो, ठीक है, आप लेट आते हो, वर्क जो आपको दिया जाता है, you're not doing it, even if you're doing it, then it is not satisfactory. So on those grounds, they can end your internship at any point of time without giving any reason. ठीक है, right? The decision of the commission in this regard shall be fine. ठीक है, very good. अब आ जाते हैं, अब हम ये सारे, सॉरी, ये आपका एनेक्सचर 2 है, ये सारे टॉपिक्स हैं, इनमें से आप चूज कर सकते हैं न्यूक्लियस ऑफ रिसर्च वर्क एंड टॉपिक. ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे, all these are on the lines of what finance commission would be interested in working. ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो 2 या 3, राइट? अब this is the application form, this is the perform of the application for interns. ठीक है, तो इधर आप इसको प्रिंट करके, पेन से फिल करके, अपने नाम से रीनेम करके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो, या इसका वर्ड मतलब डाउनलोड करके वर्ड बना के वो टाइप कर सकते हो. तो विच एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू. आई यूजुअली प्रेफर कि आप प्रिंट निकालो और उसको लिखो और फिर वापस स्कैन करके उसको अपलोड करो. ठीक है, विच एवर जो आपको कन्वीनियंट लगे, दैट्स फाइन. ऐसा कोई उन्होंने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखा है. दे आर प्रीटी कंफर्टेबल विद ईदर ऑफ द ऑप्शन. बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आप जाके ये मुझे दिख गया है परफॉर्मा, अब मैं अपने वर्ड में जाके ना ऐसे 3 टेबल बनाऊंगा 3 कॉलम के साथ, ये सारे पर्टिकुलर भरूंगा और वहां पे जाके फिल करूंगा. नहीं, डोंट डू दैट. इधर इसका प्रिंट आउट निकालो, पेन से लिखो, स्कैन करो, अपलोड करो. या अगर इसको, इफ इट्स कन्वर्टेबल, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ऊपर तक तो इट वाज स्कैन्ड कॉपी. हाँ, ऊपर तक स्कैन्ड कॉपी. अगर ये कन्वर्टेबल है वर्ड में तो आप कर सकते हो, बट डोंट गो एंड क्रिएट योर ओन परफॉर्मा. ठीक है, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट डूइंग दैट. कूल. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जो सरकार की जेब पे भी भारी पड़ेगा या आपकी जेब पे भारी पड़ेगा, विच इज पेड इंटर्नशिप या अनपेड इंटर्नशिप, जो भी आपकी चॉइस है. दोनों गलती से भी क्लिक मत कर देना, हम्बल रिक्वेस्ट. अब भैया मैं कितने दिन के लिए अवेलेबल हूँ? 8 हफ्ते बाद मेरी मामी की बेटी की शादी है, सो आई वोंट बी अवेलेबल बियॉन्ड दैट. तो भैया 6 हफ्ते 7 हफ्ते लिख दो. ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि मेक श्योर जो भी आप टाइम लिखें, जो भी आप पीरियड लिखें ऑफ इंटर्नशिप, आप उस पर अवेलेबल रहें. लास्ट मोमेंट पे ये ना हो कि मैं कहीं जाना है, ये बिजी है, फला रीजन दे के नहीं हटना. नेम, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, टाटा. ठीक है, कोर्स ये आप यहाँ पे आपके ऑप्शंस, फाइनल ईयर, परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, ईयर ऑफ एडमिशन इन योर कोर्स, और फिर कोर्स का वो, यूनिवर्सिटी, स्कूल. इस फॉर एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर कुछ है आपके पास तो यहाँ पे लिख सकते हो. क्या पता आप साइड बाय साइड आपने CFA किया हो लेवल 1, या CA के आप इंटरमीडिएट लेवल पे होते हो, राइट, फाइनल, या जो भी नाउ व्हाटएवर वी कॉल देम, IPCC वाज इनिशियली. तो जो भी लेवल है आपका, अगर वो है, CS में आप एग्जीक्यूटिव में, जो भी है, कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपकी है सिंगिंग डांसिंग के अलावा, तो प्लीज उसको यहाँ पे लिखना. ठीक है. नॉलेज एंड यूजेज ऑफ MS Excel, एनी द रिलेवेंट एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस कहीं भी अगर आपने काम किया, इससे पहले इंटर्नशिप की है, सो प्लीज जस्ट हाईलाइट एंड इलैबोरेट. अब
सबसे लेजी काम जो कभी बच्चों को लगता है ना, बिकॉज आई हैव सीन द आंसर्स, इज कि अब इसमें क्या लिखे, मोटिवेशन, रीजन कहाँ से लाएं, ये मेरे पे अंदर से कहाँ से आएगा कि मैं फाइनेंस कमीशन में काम करना चाहता हूँ। चलो गूगल कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट डन। हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के मत करना, वो जो भी आए just write it, just make sure कि हाँ, the point which is coming up is something that really uh, guides you towards applying for this particular internship, ठीक है। और एक और चीज, कोई भी वहां पे ऐसा आंसर नहीं देख रहा है कि हाँ ये आंसर है तो सही है, ये है तो ऐसा कुछ नहीं है, but they are looking at exactly what genuinely drives you, what is the motivation behind you kind of literally coming up and applying for this particular internship. Okay, so just do watch out that. No copy pasting. But prefer research topic तो ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है, आप उसका नाम डालेंगे, मोटिवेशन, और अगेन आप उसका भी देखना पड़ेगा ना कि मैंने ये चूज किया ABCD अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके नहीं किया, मेरे को लगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है किसी सेमेस्टर में, किसी इंस्टीट्यूशन की बुक में कुछ, तो ये टॉपिक थोड़ा सा मेरे को स्लाइटली अच्छा लगता है, सो आई वर्क ऑन दैट, तो देयर मस्ट बी समथिंग उस टॉपिक के रिलेटेड, तो आप वहां यहाँ पे वो लिख दो। प्रपोज आउटलाइन ऑफ दिस टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रपोज टाइमलाइन ऑफ दिस टॉपिक, कब तक आप इसको रैप अप कर सकते हो, ठीक है। सेम चीज टॉपिक 2 में करो। नेम ऑफ द एप्लीकेंट्स, अपना प्रॉपर नाम यहाँ पे लिखो, डेट लिखो, ठीक है। और हाँ ये देखो एकदम सही चीज किया उन्होंने कहा है कि सॉफ्ट कॉपी ऑफ दिस ब्लैंक परफॉर्मा इज शैल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, तो वहां से भी इसको परफॉर्मा को डाउनलोड कर सकते हो। हाँ ये वर्ड में वैसे भी नहीं कन्वर्ट हो सकता, तो बेस्ट तरीका है जस्ट टेक आउट द प्रिंट आउट, पेन से भरो बड़े आराम से, गलती हो जाए तो एक और प्रिंट निकाल के भर लो, एंड देन उसके बाद स्कैन करो एंड देन जस्ट अपलोड बाय द नेम, योर ओन नेम, ठीक है, नॉट द परफॉर्मर, ठीक है। Okay, cool. That's it from me for the internship opportunity at the 16th Finance Commission. And that's it. Thank you so much for joining in, guys. And I hope many of you do apply for it. ठीक है, पहले तो apply करो, और जिनको मिल जाती है, if you're working there, please do inform us and do tell us about your experience once you complete the entire time frame. ठीक है, चलो, best of luck to each one of you and hope this session was very informative and useful to many students out there. ठीक है, चलो, thank you so much guys, take care.